Hello everyone. So today we'll discuss some basic numericals of the neural network. Starting regarding the basic numericals, we are having a first numerical which is representing a figure of a neural network comprises of three input values. That means x1, x2, and x3. We're having three input neurons x1, x2, and x3, and three input values that is zero point 0.3, 0.5, and zero point 0.6. Regarding these values, we are having one output value with this input value, that is the y. Between the x1 and y, we are having the weights value presented. The link between these connection, we are having assigned some weights value, which is given here it as 0.2, 0.1, and minus 0.3. So what we'll have to do, we have to calculate the final output of this output y output neuron. हमें इसका output identify करना है. So for the identification of this output value, what we will do is that we will simply apply a formula. The formula is saying y input is equivalent to w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3. We know the value of x1, x2, x3 is 0.3, 0.5, and 0.6, and the value of the weights is 0.2, 0.1, and minus 0.3. तो जब मेरे पास ये दोनों values present हैं, what I will do is that I will simply put these values in the formula. The first one is W1x1. That means the weight value for the W1 is by 0.2, which is mentioned here. X1 is 0.3. W2x2. That means the value for the x2 is your 0.5, and the weight value is 0.1. Similarly, W3x3, that means minus 0.3 and 0.67. If I'll add all these values, I will get the final output value from the Y neuron is minus 0.07. So coming on to the next question, the question number two, we have to calculate the output of the given network. In this network, the difference between the previous network and this network is that we are also having the bias value. Generally, in neural network, we are representing the bias value, which is held the 1. The 1 is representing the bias value. Here we are having two input neurons x1 and x2, two input values 0.2 and 0.6, two weight values 0.3 and 0.7, and the base value is also getting inside in the output neuron having the weight value as 0.45. तो हमें पता है हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका. The formula for that is y input is equal to w1x1 plus w2x2 plus b. मेरे पास ये सारी वैल्यूज प्रेजेंट हैं. मुझे पता है मेरी वेट की वैल्यू w1 की वैल्यू क्या है. इट इज योर 0.3. x1 की वैल्यू क्या है 0.2. सिमिलरली w2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 0.7. x2 की वैल्यू मेरे पास 0.6 है. मैंने उन वैल्यूज को पुट करा plus b is the base value, which is your 0.45. That means if I'll add all these values, it is coming to be your 0.93. So the output value finally achieving from that is 0.93. Coming on to the question number 3. In question number 3, we have to apply some activation function. What are the activation function? Before telling the activation function, I would like to define the Bayes value. हम Bayes value को क्यों use करते हैं neural network में? You know the equation of a line. The equation of a line is y is equal to mx plus c. What is this c? C is the constant value. अगर मैं constant value को अपने line में mention नहीं करूँगी, तो मेरी line straight line draw नहीं होगी. तो यानी कि मुझे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कांस्टेंट को मेंशन करना ही पड़ेगा. सिमिलरली फॉर द न्यूरल नेटवर्क मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरी बायस वैल्यू से अचीव हो सकती है. बायस वैल्यू इज एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. सिमिलरली व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है मेरे पास, और मुझे उस हैवी बॉक्स को अगर पुश करना है, आई एम नॉट एबल टू पुश दैट बॉक्स, तो मैं क्या करूंगी, आई विल ब्रिंग अ पुली. मैं एक पुली लेकर आऊंगी और उस पुली की हेल्प से उस बॉक्स को मूव करने की कोशिश करूंगी और मेरा आउटपुट अचीव हो जाएगा जो मेरा बॉक्स को हिलाने का है. सेम थिंग इन दिस नेटवर्क. इस नेटवर्क में अगर मुझे आउटपुट को अचीव करना है, so for that part I will apply some activation function. There are number of different activation functions we can apply on the neural network. Talking regarding this question, it is given here we are having the three activation functions, that is the binary threshold function, the bipolar threshold function, and the binary sigmoidal function. We will one by one apply these activation function for achieving my output on this network. So before applying the activation function, what we have to do is that we have to apply the formula, the basic formula for the calculating the input values और फॉर अचीविंग माई आउटपुट. जो मेरा आउटपुट मेरा वाई पे आना चाहिए वो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जब मेरे पास यहाँ मेरा आउटपुट निकल कर आ जाएगा, उस पर मैं इस एक्टिवेशन फंक्शन को मैं अप्लाई करूंगी. सो वी नो द बेसिक फॉर्मूला फॉर दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द इनपुट वैल्यूज विद द वेट्स वैल्यूज. मल्टीप्लीकेशन के बाद मैं इन सारी वैल्यूज को सम अप करूंगी. तो अगर मैं
overalls define करूँ, it is saying that y input is equivalent to summation of n I is equivalent to 1 wi xi, यानी कि मैं इसको अगर इलेबोरेट करती हूँ इस फॉर्मूले को w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस b, मैंने इस फॉर्मूले में जब ये सारी वैल्यूज को पुट करा दैट मीन्स w1 इज माई 0.1, x1 इज माई 0.8, सिमिलरली w2 मेरी वैल्यू है 0.3, x2 है मेरे पास 0.6, सिमिलरली माई बेस वैल्यू इज 0.35 जो मेरी यहाँ डायग्राम में गिवन है और हमने यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखी है। तो माई फाइनल आउटपुट वैल्यू कमिंग हियर इट इज एज योर 0.53। अब जब मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई है, अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आई हैव टू अप्लाई वन बाय वन ऑल दीज एक्टिवेशन वैल्यू। सो एक्टिवेशन वैल्यू मेरी फर्स्ट क्या है, मेरी फर्स्ट है बाइनरी थ्रेशोल्ड फंक्शन वैल्यू। आई विल अप्लाई द बाइनरी थ्रेशोल्ड फंक्शन ऑन द y इनपुट वैल्यू, जो y में मेरे पास जितना भी इनपुट आया है उसके ऊपर मैं इस एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करूंगी फॉर अचीविंग माई आउटपुट। अगर मैं बात करती हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन की, I have to represent this value in terms of f of y input is equivalent to 1 if y input is greater than equals to theta, 0 if y input is less than theta। थीटा क्या है, थीटा आपकी एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है जो आपको सेट करनी होती है फॉर अचीविंग माई आउटपुट। जो भी वैल्यू को आप सेट करेंगे उसी वैल्यू के बिहाफ पर ही आपका न्यूरॉन फायर करेगा। ठीक है बेटा, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये चेक करेंगे कि हमारा न्यूरॉन फायर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, मैंने अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये कह दिया बेटा कि मेरी जो वैल्यू है अगर आपके इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगी तो मेरा न्यूरॉन फायर करेगा, यानी कि वो 1 बाहर प्रोड्यूस करेगा, वो आउटपुट को देगा एज ए 1। और अगर मेरी वैल्यू आपके 0 से कम हुई तो आपका न्यूरॉन फायर नहीं करेगा, वो 0 ही रखेगा, 0 ही आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो अगर मेरे पास जो आपका आउटपुट निकल कर आया था, मेरा आउटपुट क्या निकल कर आया था जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर निकाला था, दैट आउटपुट वॉज 0.53, दैट वाज माय दिस आउटपुट वैल्यू, इजंट इट, ये मेरा आउटपुट था 0.53, इजंट इट। अब इस आउटपुट को जब मैंने चेक करा विद दिस एक्टिवेशन फंक्शन, इट इज सेइंग दैट द वैल्यू 0.53 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि मेरा आउटपुट क्या निकल कर आएगा, मेरा आउटपुट निकल कर आएगा 1, यानी कि मेरा न्यूरॉन फायर करेगा ही करेगा। Getting my point everyone? So on the behalf of threshold value we can judge, we can identify कि जो मेरा नेटवर्क है वो मेरी क्या वैल्यूज को फायर करेगा, वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, नाउ कमिंग ऑन टू द बाइपोलर थ्रेशोल्ड फंक्शन, दैट इज द सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन। व्हाट इज द बाइपोलर, इंस्टेड ऑफ 1 0 वैल्यू वी विल यूज द वैल्यूज एज 1 एंड -1, हम 1 और 0 की जगह 1 और -1 को यूज करेंगे। सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट थिंग व्हाट वी विल डू, 1 if y input is greater than equals to 0, -1 if y input is less than 0। ठीक है बेटा, मुझे पता है मेरा 0.53 क्या है, मेरा इनपुट निकल कर आया था y इनपुट, मैंने पुट करा तो मैंने चेक करा थ्रेशोल्ड के बिहाफ पर, यस इट इज सेटिस्फाइंग माय वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मेरा आउटपुट न्यूरॉन क्या देगा, मेरा आउटपुट वैल्यू मेरा 1 ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बिटू, सिमिलरली द लास्ट एक्टिवेशन फंक्शन इज माय बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से आपका ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला फॉर दैट इज f of y input is equivalent to 1 upon 1 plus e to the power minus y input। तो मैं क्या करूंगी, इसके जगह अपनी जो मेरी y input की वैल्यू है उसको मैं पुट कर दूंगी विच इज योर 0.53। जब मैंने इस वैल्यू को पुट करा तो मेरा आउटपुट क्या निकल कर आया, मेरा आउटपुट निकल कर आया 0.625, यानी कि मेरी जो आउटपुट वैल्यू निकल कर आई वो आई है मेरी 0.625। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वलेंस टू 0, आपकी 0 से बड़ी वैल्यू है तो क्या होगा, मेरा न्यूरॉन वो फायर करेगा ही करेगा। So that's it about the basic numericals of these questions. Thank you so much. Further, we will discuss in next lecture the more numericals about the neural network. Thank you.